हाँ सर. Okay. Welcome, my dear students, to 11th class. We will continue with the topic. We will continue with the topic structure of atom. And as per our discussion so far, we now discuss four quantum numbers. The first quantum number is principal quantum number denoted by n, and its value is 1, 2, 3, 4, and so on. This represents the principal shell of principal shell or main shell to which electrons are accommodated. And yesterday we had seen few points of this. First point, it gives the distance of electron from the nucleus, distance of electron from the nucleus, and what more, it also gives the energy level, energy level, energy content बोल सकते हैं जिसको हम, energy level means energy content of electron. So these are the few very important points of principal quantum number. Next quantum number we had seen, that is the azimuthal quantum number or subsidiary quantum number or angular momentum quantum number. This is denoted by L, and its value depends on n, and its value depends on n, and it is having a range. क्या range है इसकी? 0 to n minus 1. L is equal to 0 to n minus 1. And this azimuthal quantum number, it gives the information related to subshell, that is what we call as orbital, and it also gives information related to shape of orbital, shape of orbitals. So shape of orbitals कल हमने देखे थे, there are four orbitals: s orbital, p orbital, d orbital, and f orbital. S orbital being spherical in shape, p orbital dumbbell in shape, d orbital double dumbbell, and this is complicated three-dimensional structure. Complicated three-dimensional structure. So this is about the azimuthal quantum number. If there is only, if n is equal to 1, then L is equal to 0. If n is equal to 2, then L is equal to 0 and 1. If n is equal to 3, then L is equal to 0, 1 and 2. So this is what, so on. If L is equal to 4, we have L is equal to 0, 1, 2 and 3. Subshell are available in this main shell. तो ये main shell है, ये subshell है, and if it is 0, then s orbital. If it is 1, it has to be p orbital. If it is 2, then d orbital, and 3 is f orbital. This much information we discussed yesterday. Now today we will move to the next quantum number, and that is the third quantum number. We call it as magnetic quantum number. And magnetic quantum number is denoted by small m, and it gives about the orientation of electron in magnetic field. Orientation of electron in magnetic field. Orientation of electron.
जो कि ड्रॉबैक हमने देखा था बोर एटॉमिक मॉडल में कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर it explain what the orientation of electron in magnetic field. मैं बात कर रहा था ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल की जो स्पेक्ट्रल लाइन है, if we put that spectral line into electric field and magnetic field, that line splits into finer lines. जैसा मैंने कहा था आपको कि ये आप अपना एक सिंगल हेयर का थ्रेड भी अगर लेते हैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में या माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको ये एक सिंगल हेयर भी दिखेगा कि इसके बहुत सारे फिलामेंट्स हैं, वो फिलामेंट्स को ज्वाइन किया तो एक हेयर थ्रेड बना, है ना। तो वैसे ही ये इनिशियल जब स्टडी हो रही थी तो जो बीम ऑफ लाइट है उसको जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसका जो स्पेक्ट्रम था इट स्प्लिट्स इनटू फाइनर लाइंस। तो उसी का एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया, ज़ीमैन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसको ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं और दैट स्प्लिट इनटू फाइनर लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। Orientation of electron in magnetic field, correct? And next point, its value ranges from magnetic quantum number. It is minus n 0 to plus n. Its value depends on azimuthal quantum number. And range क्या रहेगी इसकी, बहुत बड़ी रेंज होगी, minus l 0 to plus n. Minus l 0 to plus n. This is the range of magnetic quantum number and its total value of n, total value of electron in is m is equal to twice l plus 1. देखेंगे हम इसको कैसे आता है, twice l plus 1. तो n की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो twice l plus 1 होना चाहिए और जो रेंज है वो minus l plus l है. This is what principal magnetic quantum number. करेक्ट. अब ये तीनों क्वांटम नंबर को एक साथ लिखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. चलिए अभी इसको एक अप्लाई करते हैं, जैसे ये लिखा है ना, इसी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, इसको यूज करूंगा. अब यहाँ से देखो आप और मुझे बताओ कि m की वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या रहेगी m की वैल्यू. चलिए फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, m की वैल्यू n is equal to 1, l is equal to 0, minus l 0 plus 1 plus l. तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 0 ही आएगा. सही है. अब यहाँ l 0 है, 0 सही है और 1 है तो क्या आएगा, ये माइनस 1 प्लस 2. तो अब इसको सिस्टमैटिकली लिखना है तो माइनस 1 0 प्लस 1, माइनस 1 0 प्लस 1. यानी कि क्या हो रहा है, ये जो सेकंड एनर्जी लेवल में दो ऑर्बिटल है, एक है 0 एक है 1. तो बेटा उधर जो भी पढ़ने को मुझे m is equal to minus 1 0 plus 1. That means it splits into 3. It splits into 3. और यही फिर हमको ये p ऑर्बिटल px py और pz ऐसा मिलेगा. करेक्ट है. तो क्या लिखेंगे इसको ठीक से अगर लिखना है तो 0 1 2 लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे और 1 को भी फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस 1 0 और माइनस 1 0 प्लस 1. रेंज आ गई इसकी. अब l is equal to 3, l is equal to 0 1 2.
तो इसमें क्या क्या आएगा बोलेंगे अभी आप? -2 -1 0 1 and 2। देखिए सेकंड में आ गया तो ये 5 वाले 5 आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएंगे, इसमें 6 आ जाएंगे, इसमें 2 आएंगे। विल कम टू दैट। अब यहाँ when n is equal to 4, n is equal to 3, n is equal to 3, range -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इसकी रेंज -3 -2 -1 0 1 2 and 3। कितने टोटल सब सेल दिख रहे हैं हमको? 7। और ओरिएंटेशन 7 हो गया। यहाँ अभी अपने को 4 सब शेल मिल रहे थे, 4 सब शेल में ओरिएंटेशन 7 मिले, 7 में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 14 टोटल हो जाएगा। अब ये वाला भी आप फॉर्मूला देख लो, यहाँ पर n is equal to 2 into 0 plus 1, anything multiplied by 0 is 0 और plus 1, यानी m is equal to 1, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो ओरिएंटेशन रहेगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ हम क्या लिखें? l is equal to 0, l is equal to 1, तो 2 into 1 plus 1 है ना, 3 हो गया। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? m is equal to l is equal to 2, तो 2 into 2 plus 1 5 हो गया। तो देखिए 5 आ रहा है क्या? l is equal to 2 है, उसमें l is equal to 2 है ना, ये 2 है, l is equal to, और उसमें आपको 5 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n मिल गए आपको। 5 है, ईच कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 10 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करनी है प्रैक्टिस कि ये तीनों को एक साथ लिखना है ना। तो एक टेबल बनाएंगे, मैं बनाता हूँ, आप लोग मेरे साथ। ये हो गया ना डिस्कशन, इरेज कर लेता है इसको। तो ये 3 क्वांटम नंबर हो गए। 4th क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा समझना नहीं है। यहाँ पर हम ये वाला टेबल बनाते हैं। आप लोग ड्रॉ करेंगे इसको, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके टेक्स्ट बुक में होगा नहीं होगा डजंट मैटर एट ऑल, वी विल हैव टू प्रैक्टिस फिजिकली। नेट तो पूरा की तरह पूरा होगा। अरे ऐसे दिखता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, टेबल बनाएंगे आप और इसको हम फिल करेंगे और इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे।
चलिए इसको फिल करना शुरू करेंगे आप अपने आप, जिसको जमता है मैं बाद में फिर मैं तो बता रहा हूँ कैसे फिल करना। पुट वैल्यू ऑफ एन, ये लगता है तो न्यूसेंस होते जाएगा। रहने देता हूँ, उसको क्या मैं पहले चॉकलेट देता था और मेरी कार में चक्कर घूम गया था। हाँ? क्या बोला? हाँ हाँ हाँ। तो सभी बच्चे वैसे ही बोलते हैं, वैसा वो भी सीख गया। अभी कहाँ जा रहा है? क्लास जा रहा है? कहाँ जा रहा है? डर कर हाँ कहाँ जा रहा है? हाँ इसका बाप भी रंगदार है, वो भी रंगदार बनेगा। फिर ज्यादा एकदम गुंडा चाहिए, किसी ने क्या भौर से मार देता हूँ। सब डरते बच्चे सीनियर है, उसको पूछना। चल प्रिंसिपल चल, यहाँ लिखेंगे बेटा के है ना, और ये आएगा 1। वैल्यू ऑफ एन क्या हो जाएगा? 0। वैल्यू ऑफ एन बनेगा 0। और इसी में हम यहाँ लिख सकते हैं, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? एस ऑर्बिटल होगा। यहाँ एस ऑर्बिटल भी है जगह तो लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। Next, N, value 2, 0 and 1. One is P orbital. Minus L, 2 plus L. कितना लिखेंगे? -1, 0 plus 1. -0 plus 1. Total number of electrons 8. 6. 1 के 6, इसके 2। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 plus 6, यानी ये टोटल 8 हो जाएगा। मैंने इसको कैसा होता है, इसको ये मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। m is equal to 0, m is equal to -1, 0 plus 1। अब ठीक हो जाएगा। s वाला है ना, s का वैल्यू 0 है और p के लिए -1, 0 प्लस 1। अब ये 2 plus 6, 8 आ गया से m आ गया, 3 हो गया, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। वर्टिकली लिखना चालू करते हैं, तो फिर बराबर आप कंप्लीट करेंगे। m is equal to 0, m is equal to -1, 0 plus 1।
L is equal to -2 -1 0 +1 +2. इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन. अब n mn o तक के लिखो पूरा, एक के नीचे एक लिखते जाओ. This n तक ही लिखे, s के लिए तो g में जाना पड़ेगा, बस n तक लिखे आप. इसमें कैसे होगा, इसका भी ये 0 रहने वाला है, इसका क्या आ जाएगा, 1 के लिए 0 भी होगा, -1 0 +2, ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2. 3 के लिए l is equal to -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. आइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे. 2 6 10 14. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, है ना? तो देखेंगे अब आप इसको. 1 ऐसा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2. हो गया खत्म. तो जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस फर्स्ट वाला है 1, इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल है. सेकंड s n p, तो 1s2, ये कंप्लीट हो गया. k वाला कॉमा देता हूँ, वैसे लिखते नहीं है कॉमा, अभी समझने के लिए. नेक्स्ट क्या है, 2 में 0 है यानी s होगा, और s की कैपेसिटी 2 है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जो. नेक्स्ट क्या है, 1 यानी p ऑर्बिटल, तो 2s का 2p, और 2p में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन. थोड़ा समझ में आता है इसको. हाँ इसको p की बात कर रहे हैं हम. हाँ total number of electrons. उत्तर क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे. एक सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो ये इसके सब शेल बन गए, शेल है और फिर उसके सब शेल बने,
और एक इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल में 2, पी में भी 2 ही रहते हैं, लेकिन पी 3 में स्प्लिट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। एक पी ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो 3 ओरिएंटेशन मिलते हैं उसके, जैसा कल हमने बताया था पी एक्स पी वाई पी जेड। तो पी एक्स में 2, पी वाई में 2, पी जेड में 2, तो टोटल 6। ऐसा डी में भी वैसे, अब ये 5 में स्प्लिट हो गया है ना, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया हमने। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक समझा रहा था कॉन्फ़िगरेशन। ये 1s2 लिखा, 2s2, 2p6। सेकंड वाले में 2 ही है? सेकंड में सिर्फ 2 है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला थर्ड शेल में। थर्ड में 0 है तो s, 1 है तो p, थर्ड का p, थर्ड का p ये 6, और थर्ड का d तो d 10। अब इस t को फोर्थ में, दिस इज ओवर, फोर्थ में आते हैं तो फोर्थ में फिर से s है, फोर्थ में फिर से p है, फोर्थ में फिर से d है, और एडिशनल क्या आ गया f। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर, ये कॉमन दे दिया, फोर्थ शेल में जा रहा है 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। सही है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए एक प्रिंसिपल है, वो अफबाउ प्रिंसिपल है ना, ये सुना होगा आपने। अफबाउ ये जनरल टर्म है, जर्मन टर्म है, जर्मन में। इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि कैसे इलेक्ट्रॉन को सिस्टमेटिक तरीके से फीड किया जाता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कल मैंने बता दिया था आपको, है ना। अब उसके बाद का जो पॉइंट बनता है, और क्वांटम नंबर 45 पेज हो गया। हाँ, ये पेज नंबर 47 पे टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। मीटिंग को और 7 मिनट बचे। कितने? 7 मिनट बचे। ओके, शेप ऑफ ऑर्बिटल भी मेरा पूरा हो गया था। अफबाउ प्रिंसिपल समझा दूं क्या? एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, यहाँ पर इनकी एनर्जीज को बताते हैं। चलिए ये देख लीजिए, 7 मिनट है ना ये। 1s2 is 1s2 is less than 2s. 2s is equivalent to 2p, which is less than 3s. 3s is equivalent to 3p, which is equivalent to 3d. But this is less than 4. 4s is equivalent to 4p, 4d, 4s. जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक फ्लैट स्कीम है, उसमें ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में एस का एक फ्लैट है, और ये फ्लैट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो वहां 2 फ्लैट दिखेंगे आपको, एक एस वाला और एक पी वाला। पी में 3 ब्लॉक दिखेंगे आपको, 3 रूम है, तो एस के 2 हो गया, पी के 6 हो जाएगा। थर्ड फ्लोर पे गए आप, थर्ड फ्लोर पे गए तो आपको एस मिलेगा, पी मिलेगा और डी मिलेगा। एस में तो 2 ही रहेंगे, पी में 3 हो जाएंगे और डी में 5 हो जाएंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। इसी को आगे बढ़ा दिया आपने, फोर्थ फ्लोर पे चले गए तो वहां पर एस मिलेगा, पी मिलेगा, डी मिलेगा और एफ मिलेगा। और सभी की कैपेसिटी अब आपको ध्यान में आ गई, ये 14। अब ये 14 कैसे स्प्लिट होंगे, ये 10 कैसे होंगे, ये अभी हम देखने वाले। अब इसमें भी और वेरिएशन आने वाले हैं, जैसे कि
3D और 4S, 3D और 4S इसमें ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रहेगी। 3D और 4S, 3D और 4S है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो वो एक्सेप्शन वाले रूल भी हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग को दे देते हैं हम लोग, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। हेडिंग रहेगी ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, वो फिलिंग होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, N+L रूल। ठीक है, याद अभी सिर्फ जस्ट याद रखो, इसको मैं समझाऊंगा। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, N+L, N+L रूल, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आने वाला है। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल का देखो, एक बना हुआ है आपके पास में चार्ट, और उसमें एरो भी दिया हुआ है। उस एरो को फॉलो करते जाएंगे आप, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिख सकेंगे। आप ये पिक्चर को सामने रखो, और जैसा एरो प्रोसीड हो रहा है, वैसा अपनी नोटबुक में ऑर्बिटल्स को लिखते चलो, जैसा मैंने लिखा 1s2 2s2। तो आप रेड वाले इसमें देखेंगे, तो पहले 1s, फिर टर्न का हुआ राइट में, राइट में जाने के बाद वापस लेफ्ट आ गया, उसके बाद क्या आया 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 3d, no, 4s पहले आया, और उसके बाद 3d आया। मैंने यही कहा था ना आपसे, 4s और 3d। तो इसमें 3d की थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है और 4s की कम है। नंबर 4 है लेकिन एनर्जी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां एंटर, क्या लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल करते करते हायर लेवल पे जाते। तो ये ऐसे एक्सेप्शन मिलेंगे हमको, और वो एक्सेप्शन हम बहुत आसानी से पकड़ेंगे, ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और वहीं से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ये एक्सेप्शन है, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे। बाकी स्टूडेंट कैसा लिखेंगे, इस तरह से। आप कैसा लिखेंगे, पहले 4s लिखेंगे, बाद में 3d लिखेंगे, जिन्होंने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ लिया है। तो हो गया टाइम? हाँ सर, 3 मिनट, ओके, 2 मिनट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अभी, जल्दी से हो जाता है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल 3 मिनट में वो चार्ट बन जाता है। आप सबको वो चार्ट बना के बिना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसके बिना वो आएगा नहीं हमको। इसको कोई और प्रिंसिपल का रूल लगा देंगे। हाँ, यस यस, ठीक है, जानेगा उसके कैसा है। ये देखो, पहले तो ये ऐसा क्रॉस करना तो तरीका है, और फिर उसके एंड टू एंड जोड़ दो, बॉटम से लेके जाओ टॉप पे जोड़ दो, बॉटम से लेके जाओ टॉप पे जोड़ दो, बॉटम से लेके जाओ टॉप पे जोड़ दो। देखो तो अभी 3p के बाद 4s आ गए, कहाँ जाएंगे, ये बॉटम वाले लाइन से टॉप पे गया, ये नीचे आ गया, फिर ये बॉटम वाली लाइन में